امریکی وزیر خارجہ کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاکستان اپنے آئین آزادی اظہار کے حقوق کے مطابق آزادانہ اور شفاف انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہم اقتصادی خوشحالی کے لیے اپنے مشترکہ عزم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹویٹ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی وزیر خارجہ کے تہنیتی پیغام پر شکریہ۔ عبوری حکومت آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابی عمل کو آسان بنانے کے لیے پوری تندہی سے کام کرے گی۔ پاکستان امریکی کے ساتھ شراکت داری کو اہمیت دیتا ہے۔ خطے میں اقتصادی خوشحالی، جمہوریت اور استحکام کے لیے امریکی عزم قابل قدر ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ نگراں وزیر اعظم کا جڑاوالہ واقعے کا نوٹس۔ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ قانون کے خلاف ورزی کے مرتکب عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ حکومت برابری کی بنیاد پر اپنے تمام شہریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ انشورنس کے حوالے سے عوام میں آگاہی پھیلانا ضروری ہے۔ مظلوم طبقے کو انصاف کی فراہمی ناگزیر ہے۔ اسلامی طبقاتی انصاف پر بھرپور زور دیتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا اسلام آباد میں انشورنس محتسب اور فوری انصاف کا نظریہ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب۔ بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے تین نام تجویز۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی تو نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ پاکستان بحریہ کے جہاز PNS سیف کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ کمانڈنگ آفیسر کا میزبان حکام سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں PNS سیف پر پرچم کشائی کی تقریب کا بھی اہتمام۔ دونوں ممالک کی افواج کا مشترکہ بحری مشقیں۔ PNS سیف کے دورے اور بحری مشق میں شرکت سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ترجمان پاک بحریہ۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ سپاہی محمد شکیل شہید 13 جولائی 2017 کو تربت ضلع کیچ میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ان شرپسندوں نے کیا، اس سے ہماری دل آزاری ہوئی۔ لواحقین کا اظہار خیال۔ پاکستان کراٹے ایسوسی ایشن کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ وفد میں شریک بچوں نے جناح ہاؤس کے سامنے کراٹے کے فن کا عملی مظاہرہ کر کے وطن سے محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دینے کا بھی مطالبہ۔ مودی کے بھارت میں گائے انسانی خون سے زیادہ قیمتی۔ گاؤں رکشکوں نے 2014 سے اگست 2022 تک 206 واقعات میں 850 مسلمانوں کو شہید کیا۔ گاؤں رکشک گروہ BJP کے اتحاد یافتہ ہیں۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گاؤں رکشک حملوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ، BBC اور دیگر عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس۔ چین اور بھارت کے درمیان کور کمانڈرز کی سطح پر ملاقات کا 19واں دور مثبت رہا۔ ملاقات شول مولڈو قصبے میں بھارتی فوجی چوکی پر ہوئی۔ کمانڈرز کی سطح کے مذاکرات میں مثبت اور تعمیری بات چیت کی گئی، جس کا مقصد سرحد کے مغربی سیکٹر میں ایکچوئل لائن آف کنٹرول سے متعلق مسائل کو حل کرنا تھا۔ ترجمان وزارت خارجہ چین وانگ وین بین۔ کینیڈا کے جنگلات میں آتش زدگی آگ لگنے کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ۔ آگ کو بجھانے کے لیے فوج کی مدد بھی طلب۔ 13 صوبے آگ کی لپیٹ میں۔ خدشہ ہے کہ رواں ہفتے کے آخر تک جنگلات میں لگی آگ شہر کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ بیلونائف کے باشندوں کی شہر چھوڑنے کا حکم۔ بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ۔ گزشتہ 3 دن کے دوران 71 افراد ہلاک، 13 لاپتہ۔ محکمہ تعلیم کا ریاست کے تمام اسکولوں اور کالجز کو بند رکھنے کا اپیل۔ ہماچل یونیورسٹی میں 19 اگست تک تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد پانی کی سطح مسلسل بلند۔ عملے کو دریائے ستلج کے اطراف تمام حفاظتی پشتوں کی نگرانی کی ہدایت۔ محکمہ آبپاشی کا عملہ PDMA اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی کی جا سکے۔ ترجمان محکمہ آبپاشی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ کرکٹ میچز کی سیریز۔ قومی ٹیم لاہور سے ہیمن ٹوٹا کے لیے روانہ۔
सीरीज 22 अगस्त से श्रीलंका में शेड्यूल। पहला मैच 22, दूसरा 24, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। Finding Russo brought it down beautifully, and here's a chance driven into the net, and a turn for England. He's going to need some support. Kerr running it right. Kerr with a shot. Oh, I say it's incredible. फीफा विमेंस वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल। इंग्लैंड की मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। पहली मर्तबा आलमी कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान सिडनी में खेला जाएगा। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। और रावलपिंडी अयूब पार्क में मारी पेट्रोलियम आज़ादी हॉकी कप का दूसरा एडिशन। दूसरे रोज 3 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान वाबरा ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 7-1 गोल से हराया। पाकिस्तान आर्मी कलर्स ने पंजाब रेंजर्स को 5-1 गोल से मात दी। मारी पेट्रोलियम और पाकिस्तान नेवी का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तान अपने आइन के तहत मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है, हम इक्तसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मुबारकबाद के पैगाम पर वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निगरां हुकूमत आइन पाकिस्तान के तहत मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए काम कर रही है। हम अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं और माशी खुशहाली, जमहूरियत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म की कदर करते हैं। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उनके आबाई इलाके कान मुतज़ई के मुआहिदीन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुआहिदीन ने निगरान वज़ीर आज़म को रिवायती पगड़ी पहनाई। वफ़द ने निगरान वज़ीर आज़म को इलाके के लिए ग्रिड स्टेशन की दरख्वास्त की। निगरान वज़ीर आज़म ने वफ़द को ग्रिड स्टेशन की तनसीब और सूबे के तमाम दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर अपने तमाम शहरियों के साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाक़े की फौरी तौर पर आला सतह इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक एक सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई, जिसकी तहकीकात जारी हैं और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। तर्जमान के मुताबिक अमन कमेटी को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। अमन कमेटी और तमाम जमातों के अरकान ने इस वाक़े की मजम्मत की है और इसके साथ साथ यकीन दहानी कराई है कि कोई भी जमात किसी की पार्टी को, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं है। तर्जमान ने कहा है कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तमाम वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके के साथ इनकी तफ्तीश जारी है। जिला इंतजामिया ने रेंजर्स को तलब कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है और अपने फराइज अंजाम दे रही है। जिला इंतजामिया, अमन कमेटी और दीगर जमातों के साथ मिलकर अमन को यकीनी बनाते हुए पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग्स की गई हैं। हुकूमत पंजाब और उसके तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अवाम में इंश्योरेंस के हवाले से आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। बीमा कंपनीज के मालिकान गलत फहमियों को दूर करके अवाम में इस शोबे से मुतालिक एतमाद पैदा करें ताकि वो सहूलत से इस्तेफादा कर सकें। इंश्योरेंस मुहतसिब और दहलीज पर जल्द इंसाफ के तस्वुर के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस्लाम तबकाती इंसाफ पर भरपूर जोर देता है। मजलूम तबके को इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। उन्होंने विफाक़ी इंश्योरेंस मुहतसिब की काविशों को सराहते हुए कहा कि इदारे के जरिए अवाम को फौरी इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो रहा है, जो वक्त का तकाजा है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी फराहम करे। भारत ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ खिलाड़ी बगैर किसी खौफ के हिस्सा ले सकें। दफ्तर खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि साइरस सज्जाद काजी ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने पाकिस्तान के आलमी बरादरी से ताल्लुकात के फरोग के लिए बेहतरीन काम किया है। तर्जुमान ने मजीद कहना था कि 13 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर हमले में मुलव्विस तमाम हमरा अवरों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान तमाम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है, जबकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इस किस्म के वाकयात से मुतासिर नहीं होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। वज़ीर आला कुद्दूस बिज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। आइन के तहत स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली की तश्कील करदा पार्लिमानी कमेटी वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से भेजे गए 3 नामों पर गौर करेगी। वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो ने पार्लिमानी कमेटी के लिए अपने नाम के अलावा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और ज़ुमर खान अचकज़ई के नाम दिए हैं। अपोजिशन की तरफ से मीर यूनुस अजीज ज़ाहरी, वाहिद सिद्दीकी और हाजी नवाज के नाम शामिल किए गए हैं। अगर पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में किसी फैसले पर ना पहुंच सकी तो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ICT इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट 2020 के तहत अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट प्रोजेक्ट की असर नौ रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट इंतजामिया की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली गई है। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी और अलकादिर ट्रस्ट इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट की अरसर नौ रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर के खिलाफ फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। काबीना डिवीजन, चीफ कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद और डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज फ़रीक़ैन में शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरिया के जहाज PNS सैफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दुबई बंदरगाह पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया और पाकिस्तानी सफारत हुकाम ने जहाज का शानदार इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने मेज़बान हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में PNS सैफ पर परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। दौरे के अख्ताम पर दोनों मुल्कों की अफवाज ने मुश्तरका बहरी मश्क में हिस्सा लिया। PNS सैफ के इस दौरे और बहरी मश्क में शिरकत से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। ज़िला मोहम्मद में वाक़ कैडेट कॉलेज में मदगाट अपनी नौयत का एक मुनफरिद अदारा है। जो इलाका कभी दहशत गर्दी और मुतासर था, वहाँ पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की काविशों से तालीमी इदारे कायम हो गए हैं, जिनमें से कैडेट कॉलेज में मदगाट इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। 2020 में कायम कैडेट कॉलेज से 97 कैडेट्स फारिग तहसील होकर पाकिस्तान के नामवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के साबिक तलबा पाक फौज में भी कमीशन हासिल कर चुके हैं। कैडेट कॉलेज मोमनगात में कैडेट्स की मौजूदा तादाद 500 है, जिनमें पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ी तादाद में तलबा ज़ेवर तालीम और तरबियत से आरास्ता हो रहे हैं। जमशुदा अजला में तालीम के फ़रोग के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कबायली बच्चों के लिए हर एंट्री ने 50 सीटें मुख्तस की गई हैं, जबकि 10 खुसूसी सीटें शहदा के बच्चों के लिए भी मुख्तस हैं। मकामी लोग तालीम की आला सहूलतों को मुहैया करने पर पाक फौज के शुक्रगुजार और मोतरफ हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इलाके में अमन व अमान कायम किया और बेहतरीन कैडेट कॉलेज का तोहफा दिया। नाज़रीन, सिपाही मोहम्मद शकील शहीद 13 जुलाई 2017 को तुर्बत जिला केच में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सिपाही मोहम्मद शकील शहीद ने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद सिपाही के अहले खाना ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ इन शरपसंदों ने किया, उससे हमारी दिल आज़ारी हुई है। हमारे भाई ने भी इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की और जो कुछ हुआ है वो जो इन्होंने किया है, शरपसंदों ने वहाँ पे शहीदों की निशानियों को ज़ाया किया, शहीदों की तस्वीरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी हमारे दिल अज़ा किए, शहीदों के दिल अज़ा किए, उनके वारसों के दिल अज़ा किए। ये नहीं होना था, जो वो काम कर गए हैं, जो दुश्मनों ने नहीं करना था वो अपनों ने किया। इतना अच्छा प्यारा बेटा था मेरा और दुआ मेरे से लेकर जाता था जी। हम अपने काम में मुब्तला थे और यूं से काल आई शकील का शहादत होगी। फ़क्र करती हूँ, शहीद की अम्मा हूँ। मुझे इस बेटे की वजह से इस जहान भी इज्जत मिली
और अल्लाह इंशाल्लाह आगे अगले जहान में मुझे इज्जत मिलेगी। मैं शहीद की माँ हूँ जो बॉर्डरों पर खड़े हुए पूरे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने में कोशिश जारी रखे हुए पाक फौज के सिपा सलार छोटे से लेके बड़े तक एक टांग पर अपने शेर जैसी आंखें खोल कर बैठा है और दुश्मन अनासिर को ताक़ुब करते हुए अपने गिरफ्त में ले रहा है और अपने जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान कराटे एसोसिएशन के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। कराटे एसोसिएशन के नाज़िम की क़यादत में ज़ेर तरबियत बच्चों ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और दिल खराश वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए इस दहशत गर्दी की मजम्मत की। वफ़द ने मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को अपने लिए मिशल राह करार दिया। उन्होंने मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सजाएं देने का भी मुतालबा किया। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे लिए ये एक मुल्क हासिल किया। अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। हम यहाँ पे जिन्ना हाउस में आके हमने यहाँ पे 9 मई के हवाले से जो यहाँ पे दहशत गर्दी की गई और परेशानी हमारे लिए पैदा की गई, और ये जो जिन्ना हाउस पे हमला, पाकिस्तान पे हमला कंसीडर किया जाए। और मैं अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये बिल्डिंग जो है हमारे कायद जो हमारे पानी है पाकिस्तान के, उनसे मंसूब है और इसको देख के हमें बहुत अफसोस हुआ है। जिन्ना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने मिली नगमे की सूरत में वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, फैशिस्ट मोदी के भारत में गाय इंसानी खून से ज्यादा कीमती है। सिर्फ 2014 से 2018 के दौरान 63 गांव रक्षक हमलों में 44 मुसलमान शहीद जबकि 124 जख्मी हुए हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2014 से अगस्त 2022 तक 206 वाक़यात में 850 मुसलमानों को गांव रक्षक इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद किया। सिर्फ दिल्ली में 200 गांव रक्षक ब्रिगेड है। द गार्डियन की 2016 की रिपोर्ट में भारत में गांव रक्षक ब्रिगेडियों की तादाद 5000 से जायद है। 2015 से 2018 के दरमियान 71 गांव रक्षक हमले हुए, लेकिन मीडिया ने 4 रिपोर्ट किए। रवां साल 15 फरवरी को राजस्थान के जिला भरतपुर में 2 मुसलमानों को 80 गांव रक्षक गिरोह ने जिंदा जला डाला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में 2015 के बाद से गांव रक्षक हमलों में हैरान कुन तक इजाफा हुआ है। ज्यादातर गांव रक्षक गिरोह इंतहा पसंद बीजेपी की इत्तेहादी या हिमायत याफ्ता हैं। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने कहा है कि जाए वक़ुआ का तहफ़्फ़ुज़ ना होने के बाद शवाहिद ज़ाया और इस्तग़ासा की जानिब से अदालतों में कमज़ोर शवाहिद पेश करने पर मुलज़िम बरी हो जाते हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबा सिंध में तफ्तीश के लिए अलग से खसूसी तफ्तीशी विंग कायम किया गया है जो काबिल सताइश है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम में बेहतरी लाई गई है, ताहम पंजाब और इस्लामाबाद दोनों सूबों से पीछे है। सिंध हुकूमत की तरफ से एडवोकेट फारूक एश नाइक ने अदालत को बताया कि असेंबली तहलील हो चुकी, निगरां हुकूमत से हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने मुकदमे की समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद के लिए मुलतवी कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों की गिरफ्तारियों और मुसलसल हरासा किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की तहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि 15 अगस्त को कामयाबी के साथ यौम स्याह मनाकर बहादुर कश्मीरी अवाम ने 10 लाख काबिज भारतीय फौज के मजमूम अजाइम को खाक में मिला दिया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मुदाखलत करे। हुर्रियत चेयरमैन ने कहा कि भारत से आज़ादी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने 5 कश्मीरियों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी नजरबंदी का लदम करार देते हुए उन्हें फौरी रिहा करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब भारत के यौम आज़ादी के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में मुजाहरे किए गए। कश्मीरी तारकिन वतन ने लंदन, बर्मिंघम, पेरिस और दूसरे शहरों में भारतीय सिफारतखानों के बाहर एहतजाज किया।
इस मौके पर कश्मीरी रहनुमा फ़हीम कियानी, मिर्ज़ा आसिफ जराल, वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रुकन रंजीत सिंह और दीगर मुक़र्ररीन ने कहा कि कश्मीरी भारतीय रियासत की नौआबादियाती हुक्मरानी के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भारत जमहूरी मुल्क होने का दावा करके आलमी बिरादरी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और चीन की वजारत खारजा के तुर्कमान वांग विमिन ने चीन और भारत के दरमियान कोर कमांडरों की सतह पर होने वाली मुलाकातों के 19वें दौर को मुस्बत करार दिया है। ये मुलाकात चशियुल मुल्दो कस्बे में भारतीय फौजी चौकी पर हुई। तर्जुमान ने कहा कि कमांडर्स की सतह के मुज़ाकरात में मस्बत और तामीरी बातचीत की गई, जिसका मरकज सरहद के मगरबी सेक्टर में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक मसाइल हल करना था। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक मसाइल को तेजी से हल करने पर राजी हैं और फरीकैन ने सरहदी इलाकों में अमन और सुकून बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया है। फरीकैन ने फौजी और सिफारती ज़राए से राबते और बातचीत की रफ्तार बरकरार रखने के आज़म को इजहार किया है। उधर भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। गुज़िश्ता 3 दिन में बारिशों के बायस 71 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 13 अफराद ताहाल लापता हैं। शिमला में मंदिर के मलबे से एक और खातून की लाश बरामद हुई है। रियासत के वज़ीर आला ने कहा है कि हिमाचल में शदीद बारिशों से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत में 1 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 10 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश के पेश नज़र महकमा तालीम ने रियासत के तमाम स्कूल्स और कॉलेज को बंद रखने का हुक्म दिया है, जबकि हिमाचल यूनिवर्सिटी ने 19 अगस्त तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली सदी की बदतरीन आग के बायस हलाकतों की तादाद 106 हो गई है, जबकि रियासत के गवर्नर ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जिल बाइडन अगले हफ्ते इलाके का दौरा करेंगे। सदर जो बाइडन ने समाजी राब्तों की वेब एक्स पर कहा है कि वो हवाई के लोगों को इस आफत से निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म है। इससे पहले जो बाइडन ने जंगल की आग को हवाई में एक बड़ी तबाही करार दिया था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी इमदाद की फराहमी की इजाजत दी गई थी। उधर कनाडा के जंगलात में आतिशज़दगी के बायस शिमाल में वाक़ एक बड़े शहर येलो नाइफ के शहरियों को हुक्म दिया गया है कि वो शहर छोड़कर चले जाएं कि रवां हफ्ते से आखिर तक जंगलात में लगी आग शहर को अपनी लपेट में ले सकती है। जंगलात में लगी आग 1,30,000 मुरबा फीट तक फैल चुकी है, जिसने 13 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आग को बुझाने के लिए फौज की मदद भी तलब कर ली गई है। धुएं से कनाडा की फ़िज़ा आलूदा तरीन हो गई है और इसकी वजह से पड़ोसी मुल्क अमरीका में भी फ़िज़ाई आलूदगी बेकाबू हो चुकी है, जहाँ अब तक 10 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। परवाज़ें भी मनसूख हो रही हैं और आउटडोर तकरीबात से गुरेज किया जा रहा है। कैरिबियन जजीरे पर वाक़ मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक ने कस्बे में धमाके से हलाकतों की तादाद 27 हो गई है, जबकि 59 अफराद जख्मी हैं। हुकाम ने बताया है कि सैन क्रिस्टोबल के तिजारती इलाके में होने वाले धमाके से आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और सड़क पर मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ज्यादातर हलाकतें झुलसने की वजह से हुई हैं। इमरजेंसी हुकाम ने बताया कि जख्मी होने वाले 59 अफराद में से 37 अस्पताल में जेर इलाज हैं। यूक्रेन ने ऑरज़ोन गांव पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से ये बताया गया है कि रूस ने गांव के करीब अपनी खोई हुई पोजीशंस को बहाल करने की कोशिश की और गुज़श्ता रोज फ़ज़ाई हमले भी किए, लेकिन वो नाकाम रहे। यूक्रेनी नायब वज़ीर दिफा ने मीडिया को बताया कि मज़ीद इलाकों पर कंट्रोल के लिए हमले जारी हैं। यूक्रेन ने गुज़श्ता माह भी दावा किया था कि ऑरज़ोन गांव पर कब्जा कर लिया गया है। लीबिया के दारहुकूमत तराबलस में 2 मुतहारिब मलेशिया ग्रुपों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 27 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज कबल 444 ब्रिगेड और स्पेशल डेटरेंस फोर्स के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। 444 ब्रिगेड के सरबरा को दूसरी फोर्सेस ने तराबलस के हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया था। लीबिया की वजारत सेहत का यह कहना है कि यह रवा साल तराबलस की सबसे शदीद लड़ाई है। ताज़ा पेशरफ से अमन और सुकून में खलल पड़ा है, हालात कशीदा हो गए हैं और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लीबिया की वजारत सेहत ने मुतहारिब फ्रीकैन पर जोर दिया है कि वो एम्बुलेंसेस और हंगामी टीमों को मुतासर इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त दें ताकि करीबी हस्पतालों में खून फराहम किया जा सके। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो में हालिया 2 हफ्तों से जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान ATF नामी बागी ग्रुप के 55 अराकीन हलाक हो गए हैं। सुबह तोरी के पुलिस डायरेक्टर ने तोरी और शुमाली केवो के बागी ग्रुपों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान बास फौजी जख्मी हुए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
नाज़रीन, जंगज़दा अफ्रीकी मुल्क सूडान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को जुज़वी तौर पर खोल दिया है। सूडान के शहरी हवाबाजी के इदारे ने बताया कि पोर्ट सूडान शहर में वाक़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आमदरफ्त मुमकिन होगी। 15 अप्रैल से अब तक सूडानी फ़ौज और RSF के दरमियान झड़पें जारी हैं, जहां सिर्फ इंसानी इमदाद से मुतल्लिका परवाज़ों को आमदरफ्त की इजाज़त थी। फैसले से जंगज़दा शहरों से लोगों को नकल मकानी और आमदरफ्त में आसानी होगी। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में सर जंग के बाद सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक्किद हुई। परेड के इन्नेकाद 1920 में वारसा की जंग में सुर्ख फौज के खिलाफ पोलैंड की फतह की सालगिरह के मौके पर किया गया। परेड में पोलैंड में दीगर नेटो ममालिक के 2000 से जायद फौजियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फौजी साजो सामान और जदीद असलहे की नुमाइश भी की गई, जबकि दर्जनों तैयारों ने फ़ज़ाई करतब दिखाए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड में भी फौज को मजीद मजबूत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन दिनों पोलैंड में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और बरसद इक़्तिदार कौम परस्त जमात लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने फौजी परेड के जरिए वोटर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराने की कोशिश की है। अमरीका में सेल्फी के जुनून में मुब्तला 2 अफराद रेल की पटड़ियों पर सेल्फी बनाते हुए जान से हाथ धो बैठे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक मर्द और औरत की जिंदगी के आखिरी लम्हात को रिकॉर्ड किया गया है, जो शिकागो के ओक पार्क में इलेक्ट्रिक ट्रेन की पटड़ियों पर सेल्फी लेते हुए करंट लगने से हलाक हो गए। वीडियो में 3 अफराद को ममनुआ इलाके में ट्रेन की पटरियों पर बैठे हुए देखा जा सकता है। पहले एक शख्स को बिजली का झटका लगा, जिसके बाद पास बैठी हुई खातून भी उसकी जद में आ गई। खुशकिस्मती से पास बैठा तीसरा शख्स बिजली के झटके से महफूज रहा। तिब्बी हुकाम के मुताबिक मज़कूरा शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OST बना दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहकामात पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। सिविल जज को रावलपिंडी में OST तैनात किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया और नई एमरजेंसी में सफाई और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर मरीजों और तीमारदारों ने इलाज और एक्सरे में ताखीर के हवाले से शिकायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर्स को मरीजों के फौरी मुआयने की हिदायत करते हुए कहा कि एमरजेंसी में मरीज के मुआयने और इलाज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस्तकबालिया काउंटर्स पर मरीजों के रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान कपास की पैदावार के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर है। पंजाब हुकूमत कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है। तफसील जानते हैं खानेवाल से कुलज़म बशीर से। ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई बारे ख़ुसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के हसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से फुट्टी की क्वालिटी और मेयार मुतासिर होता है। कपास की चुनाई हमेशा इस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सूबा पंजाब में कपास की चुनाई जारी है। महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि कपास की चुनाई साफ़ सुथरी और अलैशों से पाक कराएं। चुनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइज़र की निगरानी में कराएं। चुनाई करने वाली ख़वातीन सर को ढांपने, जोली बांधने और पंड बांधने के लिए सिर्फ सफ़ेद सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें। कपास को गीली जगह पर हरगज़ न रखें। काश्तकारों को यह भी कहा जा रहा है कि चुनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, ना कि वजन की बुनियाद पर। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हिदायत जारी की गई हैं कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर, सुपरवाइज़र और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। नाज़रीन, यौम आज़ादी के मुनासबत से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद कैंपस में ओपन हाउस पेंटिंग वर्कशॉप का इन्नेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। का टास्क दिया गया। बहुत मज़ा आ रहा है आज, ये बहुत फन है एक्टिविटी। समर वेकेशन चल रही थी तो मैं घर में बोर ही होती थी, तो यहाँ पे आके एटलीस्ट लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और तो हम एक्टिविटी कर सकते हैं।
पेंट कर सकते हैं। हमारा जो इंडिपेंडेंस डे गुजरा है 14 अगस्त, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी जो है ये हमने एक इवेंट रखा है। बच्चों के लिए फन होना चाहिए, हम बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। मेरा बेटा है, बेटी है, वालदा भी आई हैं। मैंने अभी तक ये कलरिंग ही की है। इस जो यहाँ पे बेस्ट बनाएगा ये कलरिंग से वो उसे प्राइज़ भी मिलेगा यहाँ पे। सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं फ्लावर्स बना रही हूँ पेंट से और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को इसने काफ़ी इंगेज किया हुआ है। डिफरेंट एज ग्रुप्स जो है ये वो इसमें आ रहे हैं। अपने घर वालों को भी लेकर आई हूँ और मैं अपनी पेंटिंग्स भी लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। योम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किदा वर्कशॉप में बच्चों के साथ बड़ों ने भी अपने फन का मुजाहिरा किया और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के खतरात से दो चार पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए 3 रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया गया है। वो पाक चाइना सेंटर में एक्सपो से खिताब कर रहे थे। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली और उसके खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के तजर्बे और मुस्तकबिल के हवाले से पाक चाइना सेंटर में NDMA ने सह-रोज़ा एक्सपो का इनेकाद किया है। इफ्तिताई सेशन से चेयरमैन NDMA, अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर और मेहमान खसूसी डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने खिताबात किए। चेयरमैन NDMA ने कहा, हम वक्त से पहले तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। मेहमानों ने एक्सपो में लगे NGOs के स्टॉल्स का भी दौरा किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने NDMA की इस काविश को सराहा। NGOs भी यहाँ मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, यंग जनरेशन भी मौजूद है, जो हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं। जो और मुझे खुद इतनी चीज़ों का आइडिया नहीं था, आज आके मुझे पता चला है कि हम कितना काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारे कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे आफत आ जाए तो पहले से किस तरह अलर्ट होना चाहिए, और इन्होंने जो ग्रुपिंग और जोमिंग की हुई है, जो मैपिंग की हुई है, आई रियली अप्रिशिएट। यूनिसेफ के नुमाइंदा का कहना था कि हम हुकूमत के साथ मिलकर आवाम के लिए काम कर रहे हैं। फ्लड्स के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 30,000 स्कूल जो हैं वो डैमेज हुए हैं। यूनिसेफ ने और पार्टनर्स ने मिलकर अब तक जो है वो तकरीबन कोई 2 लाख बच्चे जो हैं उनको जो आर्जी हमारे स्कूल हैं जिनको हम टेम्परेरी लर्निंग सेंटर कहते हैं उनमें जो है वो इनरोल किया है, उनको एजुकेशन सप्लाईज दी हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग्स दी हैं, कम्युनिटी को एंगेज किया है ताकि ये जो है वो बच्चे अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी तरीके से हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश में हम मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो हैं उनको जो है वो रीच आउट हुए हैं अब तक। एक्सपो में मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स भी खतरात को कम करने के लिए सर जोड़े बैठे हैं ताकि आइंदा के लिए एक ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात से कम मुतासिर हो। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कहते हैं जान है तो जहां है। ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी और हिफाजती तदबीर इख्तियार करके बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। शहरियों में रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से सतलज टोल प्लाजा पर मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट्स तकसीम किए गए हैं। तफसील शेयर कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस लोधरा ने मोटरसाइकिल सवारों के ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल के सिलसिले में शऊर आगाही मुहिम के दौरान रोड हादसात में बचाव और मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट की अफादियत के बारे में आगाही फराहम की है। इस तकरीब में मोटरसाइकिलिस्ट और खसूसन वो मोटरसाइकिलिस्ट जिन्होंने एक दफ़ा हेलमेट लिया और ख़त्म हो गया, दोबारा लेने की कोशिश ही नहीं की, उनको हेलमेट की अहमियत उजागर करने के हवाले से मुखय्यर हज़रात के तावन से हमने यहाँ ऐसे चंद मोटरसाइकिलिस्ट में हेलमेट भी तकसीम किए हैं और मज़ीद भी इस हवाले से ये सिलसिला जारी रहेगा। और तमाम अवाम नास से और बिलखसूस मोटरसाइकिलिस्ट से मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी वो रोड पर आएँ, वो कौमी शाहराहें हों या सूबाई हों या राब्ता सड़कें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस लोधरा की तरफ से मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत, रोड हादसा से बचाव और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देने के साथ हेलमेट ख़रीदने की सकत ना रखने वाले और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों में SSP नदीम अशरफ और DSP मोटरवे पुलिस ने मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। हेलमेट का इस्तेमाल मोटरसाइकिल सवारों की अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने के बाद
दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। महकमे आपाशी के तर्जुमान के मुताबिक चीफ इंजीनियर ने अमले को दरियाई सतलज के अतराफ तमाम हिफाजती पुश्तों की निगरानी की हिदायत की है और महकमे आपाशी का अमला तमाम मशीनरी के साथ दरियाई सतलज के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। महकमे आपाशी का अमला PDM में और ज़िली इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल राबिते में है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई की जा सके। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ते पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले अगर बात करें दालबंदीन की, तो दालबंदीन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चिल्लास, तुरबत, नवाबशाह और DI खान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, मौसम काफ़ी खुशगवार है। इस्लामाबाद में मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश के भी हवाले से पेशगोई की गई है और सरदार सरफराज साहब माहिर मुआशियात हैं, माहिर मौसमियात हैं, माजरत के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आप मौसम के हवाले से बेहतर राय रखते हैं, तो मैं दो चीज़ें एक तो आपसे जानना चाहूँगा। एक तो मौसम के हवाले से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन चंद माह पहले ये पेशगोई की गई थी कि इस साल जो है मौसम वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, खासतौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये जो मौजूदा बारिशें हो रही हैं, ये उन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है या वैसे ही मौसम खुशगवार है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी एक इंडिविजुअल या लोकलाइज्ड इवेंट को ना मतलब मौसमियाती तब्दीली से कोई ऐसा फौरी तौर पर लिंक नहीं कर सकते अनलेस कि आप उस पर कोई रिसर्च ना कर लें, स्टडी ना कर लें। लेकिन जैसे मानसून शुरू होने से पहले पेशगोई की गई थी PMD की तरफ से कि जी इस साल मानसून की बारिशें उतनी शिद्दत की नहीं है जितनी गुज़श्ता 3 सालों में रही हैं, और इत्तेफाक से ट्रेंड वही चल रहा है अभी तक, सिवाय इसके कि जुलाई में ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन अगस्त में कोई ऐसा जितनी बारिशें नहीं हुई। मानसून करंट से इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात तक ही महदूद है, यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका है लाहौर और उससे ऊपर गुजरांवाला, गुजरात, झेलम और इस तरह से सियालकोट, नारोवाल, फिर इस्लामाबाद, पोठवार और KP के कुछ इलाके और कश्मीर और GB। तो फिलहाल मानसून का जो एक्टिव फेज है वो मतलब उस तरह से नहीं है। वो उसकी ट्रफ या जो उस एक्सेस होता है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय के साथ शिफ्ट हुआ है, तो डिफ्लेक्टेड करंट्स हमारे नॉर्थ में तो जा रही हैं, लेकिन साउथ में मौसम बिल्कुल ड्राई चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन। उसमें पूरे सिंध में और बलूचिस्तान में इक्का दुक्का जगह के तो ओवरऑल जो है इस साल मानसून की बारिशें जो हैं वो मामूल से एट द एंड ऑफ सीजन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोई शुमाली लगाजात में तो नॉर्मल के आसपास यानी एवरेज जितनी होती है उसके आसपास हो जाएगी, और जनूब में तो एवरेज से कम हो जाएगी। तो एक तरह से शुरू में प्रिडिक्शन भी ये थी। अलबत्ता ये है कि लोकलाइज्ड इवेंट्स, आपको पता है कि पाकिस्तान में पहाड़ी इलाकों में जब कोई तेज़ स्पेल हो जाता है बारिश का तो उसके नतीजे में लैंड स्लाइडिंग भी होती है, फ्लैश फ्लडिंग के नतीजे में कुछ नुकसानात बलूचिस्तान में भी हुए हैं और शुमाली इलाकाजात में भी हुए हैं, वो भी हो जाते हैं। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़िलहाल जो मानसून की ये चल रहा है फेज़ ये उतना एक्टिव नहीं है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। शुमाली इलाकों तक ही महदूद रहेगा और जनूब में मौसम ज़्यादातर ड्राई रहेगा। अच्छा सरफराज साहब, एक चीज़ मेरा क्लियर कीजिएगा, भादों का जो महीना होता है उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उसमें हब ज़रा ज़्यादा हो जाता है, उसकी गर्मी से भी जो है पनाह मांगी जाती है। तो हम देख रहे हैं कि बारिशें तो बहुत होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से हमें वो हब्स और फील हो रहा होता है कि वो ज़्यादा हो गया है। तो ये जो बारिशें हैं ये कुछ हब्स में भी कुछ कमी लाएंगी? देखिए वही इसमें असल में जिस वक्त बारिश शुरू होने से पहले का कुछ दौरानिया और फिर दौरान बारिश जो तो हब्स में कमी होती है, लेकिन अदरवाइज चूँकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा फिज़ा में गया होता है ना, तो उस मॉइस्चर की वजह से हब्स आप ज़ाहिर है कि उसमें कोई बहुत खातिर खा कमी नहीं आएगी। अगस्त का महीना तकरीबन ऐसे ही गुजरेगा। अलबत्ता सितंबर में फिर ये है कि उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सितंबर वैसे ही जो लीस्ट रेन प्रोड्यूसिंग मंथ होता है इसमें मानसून सीजन में, तो उसमें फिर जाहिर है कि जो ये आपकी अरेबियन सी से भी हवाएं जा रही होती हैं इस वक्त, और उधर बे ऑफ बंगाल से भी, तो उनकी उसके नतीजे में हब्स ज़्यादा होता है, और फिर सरफेस से लेके ऊपर 18-20 हज़ार फीट तक ये मॉइस्चर जा रहा होता है, तो उसके नतीजे में पूरी
فضا میں نا ایک طرح سے ہیومینٹی کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. تو ذرا اگر آپ یہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیجیے گا کیونکہ آپ اس پر بڑی مہارت رکھتے ہیں, تو جو ویدر پیٹرن چینجز ہم نے اس سال ایکسپیرینس کیے ہیں, تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, کچھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے جو سردی کا جو ایک جو مہینے جن میں وہ آتی تھی وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں, کچھ چینجز ایسے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں؟ دیکھیے اس میں سردی تو ابھی چونکہ یہاں نومبر میں زیادہ سے زیادہ وہ بھی شمالی علاقہ جات میں نومبر میں شروع ہوتی ہے, اور نیچے ساؤتھ میں سندھ اور بلوچستان وغیرہ میں تو دسمبر میں. تو خیر ابھی کو اس کی مطلب حتمی پیشن گوئی تو نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نا کچھ ویدر پیٹرنز اس طرح سے ایونلی بیہیو نہیں کرتے, وہ مطلب ایریٹک سے پیٹرن ہو گئے ہیں. تو جو جہاں تک مانسون کی بارشوں کا تعلق ہے تو پچھلے 3 سالوں میں اصل میں جو پیسفک اوشن کی درجہ حرارت ہوتے ہیں وہ معمول سے کم چل رہے تھے, جس فنامنا کو ہم لانینا کہتے ہیں. تو لانینا جن سالوں میں رہا ہوتا ہے ان سالوں میں پاکستان میں اور پورے ساؤتھ ایشیا میں بشمول انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ ان علاقوں پورے میں بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں. اب جو ہے وہ لانینا کا الٹ النینو چل رہا ہے وہاں پر, یعنی وہاں پر معمول سے زیادہ درجہ حرارت ہے. تو اب النینو کا امپیکٹ ایک طرح سے جولائی میں تو اتنا نہیں تھا, لیکن اب اگست کی بارشیں جو کم چل رہی ہیں, کچھ تقریباً 70-80% معمول سے کم چل رہی ہیں پاکستان بھر کے تمام ریجنز میں. تو النینو کا یہ امپیکٹ ہے. اب دیکھیے سردیوں کا بیہیویئر کیسے رہتا ہے, یہ تو اکتوبر پہ ہی جا کے نا کچھ اس پہ بات کی جا سکے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سردار سرفراز ماہر موسمیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی ڈیٹیل سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جو بارشیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں گے ساتھی اینکر محمد انیس.